Hello, my dear students. I myself, Vishwajit Singh, English lecturer in Agarwal Public Inter College. Today I am going to teach you a very important topic, active and passive voice. It is important for all the sections. For all the sections means from 6th standard up to the intermediate and so on. Means to say, this topic is a key point if someone is trying to write something in English. So I begin the topic, that is active and passive voice. Before starting the lecture on active and passive voice, it would be good for us to understand the meaning of active voice and passive voice. In an active voice sentence, in a very simple way, all of you should try to understand the meaning of active and passive voice. Active voice means where the importance is given to the subject. In an active voice sentence, the subject is highlighted. As for example, Ram writes a letter. Here, the subject Ram is highlighted. In other words, when the subject itself does the work, we call it active voice sentence. जब सब्जेक्ट यानी कर्ता स्वयं किसी कार्य को पूर्ण करता है तो वह एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहलाता है। इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता रहती है। In a passive voice sentence, the object is highlighted. As for example, a letter is written by Ram. Both active voice and passive voice has the same meaning, but the way of writing, but the way of describing makes a difference. So all of you should try to understand when the subject is stronger, the subject is stronger, the sentence is in active voice mode. Where the object is highlighted, as for example, a letter is written by Ram. एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पर पत्र जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इसको हाईलाइट किया जा रहा है। दोनों सेंटेंसों की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों की मीनिंग सेम है। In class 6, 7, 8, 9 and high school, we study this topic as active and passive voice. In 11th and 12th, this topic comes under the topic transformation.
In other words, we can say that changing from active voice to passive voice is a kind of transformation, because without changing the meaning of a sentence, if we change, it is called transformation. So it is very useful, I think. कोई भी लेख, कोई भी आर्टिकल जब आप लिखना चाहते हैं तो सेंटेंस के जो डिफरेंट मोड होते हैं उनकी आप सभी को जानकारी भलीभांति होनी चाहिए, ताकि जैसा अभिव्यक्ति आप करना चाहते हैं ठीक उसी प्रकार से कर पाए। So in the beginning, I write a sentence, Ram writes a letter. It is active voice. A letter is written by Ram. Passive voice. So dear students, please pay attention. यहाँ पर राम जो है वो सब्जेक्ट है, राइट्स ये वर्ब है। It would be good for you if you are able to understand in the sentence what is subject and what is verb and what is object. अगर आप सेंटेंस में, वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन तीनों को अगर आप भली बात पहचानते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यानी आपको इसे समझना और विदाउट एनी मिस्टेक चेंज करना सरल हो जाएगा। राम सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, राइट्स वर्ब है एंड लेटर ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में राम स्वयं पत्र को लिखता है। इस जो सेकंड सेंटेंस है आपका उसमें अ लेटर ऑब्जेक्ट है। किसका है ये आप ध्यान रखेंगे। इसको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जिस भी रूप में आप समझना चाहें समझ सकते हैं, और उसी रूप में हम इसको आगे जब रूल्स का प्रयोग करेंगे तो इसको लिखेंगे। सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस सेंटेंस का, और जैसा कि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस का। तो जो भी आप इसको चाहें कह सकते हैं। This is helping verb and written is main verb and Ram is object. ऑब्जेक्ट और फिर ठीक उसी तरीके से जैसे लेटर को हमने बताया था ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है और एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट है। तो आई थिंक कि
इसके जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं और पैसिव वॉइस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनको आप समझ चुके हैं। दोनों सेंटेंसेस में जो मीनिंग है वो सेम है, जो चेंज है वो केवल स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, मीनिंग दोनों की सेम है। नाउ आई बिगिन the rules which are very necessary to understand. I begin from present indefinite. एक चीज और है जो मैं बताना चाहता हूं आप सभी को, कि जब आप रूल्स को जानने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should try to know how you are going to identify present indefinite tense in active voice. सबसे पहले आपको ये पहचानना आना चाहिए कि ये जो सेंटेंस लिखा है ये किस टेंस का है। ये आप पहचान जाते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है आपका, यदि आप सेंटेंस को भली प्रकार से पहचान जाते हैं तो उसके बाद उसमें जो रूल अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे आप पहचानेंगे एक्टिव वॉइस में है। यह सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी सकारात्मक है। अगर सकारात्मक है तो वर्ब में यस या यस होगा। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो, यदि प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यस और यस नहीं होगा। ये पहचान है अफर्मेटिव सेंटेंस की, जो कि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। नेगेटिव नेगेटिव में डू ऑब्लिक डज। सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट तो होगा ही होगा, लेकिन जो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होगा वो डू और डज का होगा। इंट्रोगेटिव में भी यही यूज होगा। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान गए हैं तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे ये रूल भी जानने की आवश्यकता है। तो मैं लिखता हूं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अफर्मेटिव सेंटेंस भी आप समझ लीजिए कि कौन से होते हैं। इनको हिंदी में हम कहते हैं सकारात्मक। जैसे राम बाजार जाता है, राम पत्र लिखता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें नॉट नहीं होता है, सकारात्मक होते हैं। नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनमें
नॉट होता है। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप क्या होती है। इसको मैंने इस रूप में इसलिए लिखा है ताकि जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर तैयार करूंगा उस स्ट्रक्चर में आप सेंटेंस को रखते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार आप समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्या होता है। फिर सेम स्ट्रक्चर जो रूल्स लिखने का है वो मैं सारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड सो ऑन मैं अप्लाई करता रहूंगा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स इन ब्रीफ do, does, is, am, are, was, were, will, shall, and so on, has, have, had. And the second type sentence which begin from question word. Question word as for example why, what, when and where. ये पहचान आपकी इंग्लिश में थी। हिंदी में अगर आपको पहचानना है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या, कहां, कौन आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आती है, वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस कहलाते हैं या कहते हैं। इंट्रोगेटिव जो सेकंड टाइप सेंटेंस होते हैं इनमें यही सेम क्या, कहां, कौन, कैसे ये प्रश्नवाचक वाक्य के मध्य में आते हैं। इन्हें हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट टाइप सेंटेंस कौन से होते हैं और सेकंड टाइप सेंटेंस कौन से होते हैं। एक और कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया था कि जैसे इस पैसिव वॉइस सेंटेंस में इसको आप सब्जेक्ट कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कहेंगे, जो भी कहेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सब्जेक्ट से मानते हैं तो मैं सब्जेक्ट लिख देता हूं, अगर आप ऑब्जेक्ट मानते हैं तो ऑब्जेक्ट लिख देता हूं। सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस का और ऑब्जेक्ट है ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस का, तो मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट ही लिखता हूं। सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट फॉर्म में एस लिखता हूं। Subject plus is oblique am oblique are plus verb की थर्ड फॉर्म प्लस by plus object. In a negative sentence, subject plus is am, are plus not plus verb की थर्ड फॉर्म plus by plus object. In an interrogative first type sentence, we begin from the helping verbs is, am, are plus subject plus third form of the verb plus by plus object plus question mark. In an interrogative second type sentence, we begin from question word plus is, am, are plus subject plus third form of the verb plus by plus object plus question mark. Dear students, one thing more I want to clear. जैसा आप देख रहे हैं इज, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होना है वो है इज, एम, आर। तीनों में
बीच में हमने ऑब्लिक दे रखा है। इसका मीन्स ये है जिस अकॉर्डिंग यहाँ सब्जेक्ट होगा इन तीनों में से हम सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन, तो हम इज का यूज करते हैं। आई के साथ केवल एम का यूज होता है। वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन्स, इनके साथ आर का यूज होता है। तो आप समझ गए होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग, और एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। One thing is more interesting in passive voice, you can say in other words, that is very common, the third form of the verb. In all types of sentences, we use third form of the verb. It is very common. सभी प्रकार के सेंटेंसेस में जो भी रूल्स हम लिखेंगे उनमें ये जो पॉइंट होगा कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, ये आप सभी में यूज करेंगे। तो आई थिंक रूल्स ये जो मैंने लिखे हैं ये क्लियर हो गए होंगे। एक और पॉइंट है बहुत छोटा सा, बट इट इज वेरी नेसेसरी। If the sentence is interrogative sentence, always you should remember that you should apply question mark. प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करें यदि प्रश्नवाचक सेंटेंस है तो। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको कैसे अप्लाई करना है ये बताने की कोशिश करते हैं। Radha sings a song. Sings a song. ये 4 टाइप्स के सेंटेंसेस जो हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है और ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। जैसा कि पहचान हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में डू या डस का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में सेम हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। एंड इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, फिर सेम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं जो हम करते आए हैं फर्स्ट टाइप में या नेगेटिव के सेंटेंसेस में। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस।
A song is sung by Radha. A song is not sung by Radha. Is a song sung by Radha. Why is a song sung by Radha? अब मैं एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि मैंने रूल्स में आपको बताया था किस प्रकार से हमने इसको अप्लाई किया है। ये जो येलो कलर से लिखे हैं ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। राधा सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है, आ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो हम पैसिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया और इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे तो इसका मीन्स हो जाएगा एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए मैंने इसमें इज का यूज किया है। और जो संग है ये सिंग की थर्ड फॉर्म है। फिर मैंने रूल में बाई यूज किया था तो बाई यूज किया है। और उसके बाद रूल्स में मैंने ऑब्जेक्ट लिखा था तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया है। यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। सेम ऐसा नेगेटिव सेंटेंस में भी है। आ सॉन्ग को सब्जेक्ट हमने बनाया है। फिर उसके बाद सिंगुलर था, यहाँ भी सिंगुलर था, यहाँ भी सिंगुलर है तो सिंपली हमने नॉट का यूज कर दिया है। और बाकी स्ट्रक्चर सेम है। रूल्स जैसा मैंने बताया था वैसे ही स्ट्रक्चर है इसका। सब्जेक्ट प्लस इच एमआर में से कोई एक प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इन इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस जैसा कि मैंने बिगिन किया है इज से, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था, हेल्पिंग वर्ब्स हो गई इज एमआर में से कोई एक, फिर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जैसा कि आप कह रहे हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस को मैंने बिगिन किया है क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एमआर में से कोई एक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय plus object plus question mark. In this video मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया है। इसको डिफरेंट मोड से डिफरेंट वेज से मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।